Namaste and welcome everybody on this learning platform, and we are going to begin this 11th chapter of English literature, Chocolate in Your Dreams. And this is a 3-act play. Dear student, what do you understand by 3-act play? Dear children, in 3-act play, the whole play is divided into 3 parts where 3 times the scene changes. So means it's a structure that divides a story into 3 distinct sections, and each anchored around one or more plot points that drive the overall action. जो सारा एक्शन हो रहा है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के साथ होगा. तो एंड ऑल 3 पार्ट्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ईच अदर. एक के बाद एक, वो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक पार्ट आप if you will enact one part the story will be completed. No, all the 3 parts has to be enacted in order to have a complete outlook of the story. And this is a beautiful story or act, rather this is an act written by Dilip M. Salve, and Dilip M. Salve is a Delhi based science writer and winner of several national awards and fellowships of popularizing science. And he has also written science fictions and plays involving science and scientists. As you know that if you will go through the story, you will understand it is all about science and science. It is a science fiction in fact, and it has a strong message that how we are changing our lifestyle into a lousy one to for our not so good health and future. And he is basically, he writes for the young writers, young people like you. And he is known as Indian Asimo. And he has written over 30 books. His collection of short stories that The Robots Are Coming received the NCERT National Award for 1989. 80 ये सब क्वेश्चन कहीं ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है कि इनको NCERT का नेशनल अवार्ड मिला है कौन से बुक के लिए? द रोबोट्स आर कमिंग के लिए. And he has also received the Sanskrit Award for his contribution in science journalism. And he was also acclaimed as a pioneer. Pioneer means जो आगे बढ़ कर के जो सबसे आगे रहता है, किसी रास्ते को दिखाता है, तो he is pioneer in popularizing science among children by Indian Science Congress Association. So he indeed is a very renowned and good author, good writer. Now work in group of 4 and make the list of the various forms in which you eat chocolate. A few junk food that you and your friends like to eat. You have plenty of things that you like as all those junk foods and different flavors of chocolates and different varieties of chocolates. Nowadays there are plenty and you are getting it in plenty. And if you are having it in plenty, let's read the story what will happen to you. Now they read the following play and find out how a dream changes the lifestyle of a young boy, Gopa, completely. And the major characters are a woman in her late 30s, this is Mrs. Dev, Gopa in her 10-year-old son, alien, height as that of Gopa, and shopkeeper, an elderly man in his 50s. Now move to the act 1. Now what is the scene over here? The confectionery shop. And where confectionery shop are where sweets food are sold, like cakes, sweets, different kinds of sweets item. Okay, so Mrs. Dev and Gopal are looking at the variety of things displayed in the shop. The shopkeeper is around putting things in order, occasionally glancing at the two. Glancing means giving a short quick look. It is a type of look. Okay, so now let's start the play. Gopa, mummy, I want that chocolate. Mrs. Dev, oh no. Gopa, dear, no. Gopa, I want it, that's all. Mrs. Gopa stares at Gopa. Stares again. Stares is मतलब घूर करके देख रहा है, continuous. If someone looks at continuously to give some sort of signal कि भाई मैं गुस्सा हूँ या कुछ मैसेज दे रहा है, आंख से ही मैसेज देने को, that is stare. It is also a kind of look at Gopa for a moment, then continues to look at the displayed items. Gopa, mummy, I will create a scene. You know me, don't you? अब मम्मी मैं एक सीन क्रिएट कर दूंगा, मतलब तमाशा बना दूंगा, एंड आप मेरे को जानती हैं और अच्छी तरह से जानती हैं, तो आई एम गोइंग टू डू दैट. Yes,
I know you very well. After all, I have given birth to you. What? No, no, go ahead. मतलब अब ये गोपा जो बोल रहा है कि मैं सीन क्रिएट कर दूंगा, तो ये मम्मी भी हार नहीं मानने वाली, बोले कि ठीक है मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जाओ जितना सीन क्रिएट करना है करो, गो अहेड, मतलब गो अहेड वॉट एवर यू हैव प्लान्ड। एंड नाउ गोपा को लग रहा है कि अरे ये तो बड़ी बात हो गई कि मेरी बात को मम्मी ईजिली ले रही है, तो मम्मी आई वार्न यू। मिसेस देव, माय डियर यू हैव ऑलरेडी वार्नड मी, चैलेंज एक्सेप्ट हो गया है मम्मी की तरफ से, जो करना है करो। नाउ गोपा, बट मम्मी आई लाइक दैट चॉकलेट। देखो अब यहाँ पर रिक्वेस्ट मोड में आ गया। मिसेस देव, आई नो दैट माई डियर। गोपा, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट इट, स्टार्ट जंपिंग अप एंड डाउन। शॉपकीपर अप्रोचिंग द टू, अप्रोचिंग मतलब उन लोग के पास आता है। ओ मैडम, वाई डोंट यू बाई इट फॉर हिम, खरीद दीजिए ना उसके लिए। मिसेस देव, ओ श्याम जी, ही ऑलवेज वॉन्ट समथिंग व्हेन ही एंटर्स द शॉप, जब भी ये दुकान में जाता है इसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है। शॉपकीपर, ओ मैडम, ही इज़ जस्ट अ लिटिल बॉय, नॉट लाइक एनी अदर बॉय। मतलब अब शॉपकीपर को अपना सामान बेचना है, या फिर उसको गोपा को देख के दया आ गई, या वो सोच रहा है कि गोपा इज़ अ गुड बॉय, तो कोई बात नहीं, वो छोटा ही बच्चा है ना, दूसरे बच्चों की तरह नहीं है, तो एक चॉकलेट खाने से कुछ नहीं होता है। दैट इज़ द जनरल जब भी अगर तुम ऐसा करते हो तो लोग ऐसा बोल देते, अच्छा दे दो, वो बिगड़ेगा नहीं इतना सा विश पूरा करने से। लेकिन ऐसा होता है कि हमेशा हर विश 1 by 1 पूरा होते चला जाता है, तो पीपल टेक इट फॉर ग्रांटेड एंड दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि वाई पर्टिकुलर थिंग्स आर डिनाइड टू देम, क्यों वो चीज़ मना किया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है। जस्ट लाइक मोबाइल है या फिर गेम है, वो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है अगर इफ़ वी विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ओके मिसेस देव, ओह यू डोंट नो हिम। नाउ मिसेस देव बोल रही हैं कि एक्चुअली आपको पता ही नहीं है ये क्या बंदा है। गोपाल स्टार्ट जंपिंग, आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी, आई वॉन्ट चॉकलेट मम्मी। मिसेस देव, ओह नो, आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप मतलब मैं तुमसे ऊब गई हूँ। टर्न्स अवे फ्रॉम हिम, उनसे दूर चली जाती है, मतलब उसकी तरफ से उसको अपना सर घुमा लेती है। शॉपकीपर, ओह नो मैडम, वाई आर यू गेटिंग सो अपसेट, आप इतना दुखी मत होइए। वेट, और शॉपकीपर बोला रुक जाइए। कम्स आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर, इफ़ यू डोंट वांट टू गिव हिम अ चॉकलेट आई विल गिव हिम वन। टेक्स आउट वन फ्रॉम अ बॉक्स। नाउ ही हैज़ क्रिएटेड द सीन एंड गोपा को जो चीज़ चाहिए था वो मिल गया है, और मतलब ही इज़ हैप्पी विद दैट। Now Mrs. Dev, no Shyamji, it's not simply a question of buying a chocolate. It is much more than that. For instance, chocolates are bad for health. सही बात है, ऐसा नहीं था कि उसकी मम्मी उसके लिए चॉकलेट नहीं खरीद सकती थी। It is that कि she was very much concerned about the health of Gopa and his bad eating habits, so she was not buying chocolate for him. Now shopkeeper, oh madam, little chocolate will not harm him in any manner. इतना छोटा सा चॉकलेट से बहुत ज़्यादा कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। शॉपकीपर इज़ नॉट अवेयर ऑफ गोपाज बिहेवियर, और ही इज़ नॉट अवेयर ऑफ द चॉकलेट, how much sugar it contains and how much it can be harmful to a particular person or any person. So Mrs. Dev, I want a large bread and 100 gram butter. मतलब यहाँ पर देखो उन्होंने इग्नोर कर दिया इस बात को, और उन्हें जो चाहिए था उन्होंने मांगा कि I want a large bread and 100 gram butter. Shopkeeper, okay madam, puts the bread and butter into plastic bag and hand it to Mrs. Dev. Also returns the balance. Anything else? Mrs. Dev, no nothing. Turns to Gopa. Come on. Walks out of the shop. अब गोपा बोल रहा है, yes मम्मी, opens the wrapper मतलब उसका जो कवरिंग है चॉकलेट का उसको हटा रहा है, of the chocolate and begins to eat it, making faces at her. अब है इसको तो मिल गया, और चिढ़ाते हुए मम्मी को दिखा रहा है कि देखो मुझे तो चॉकलेट मिल गया। मिसेस देव, स्टॉप इट विल यू आर नेवर सेटिस्फाइड गोपा, बंद करो ये सब, तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, कभी भी तुम्हारा मन नहीं भरता है। गोपा आराम से खाते हुए, दैट्स ट्रू माई डियर मम्मी। मिसेस देव, ओह आई डोंट नो व्हाट द वर्ल्ड कमिंग टू विद चिल्ड्रन लाइक यू, क्या होगा इस दुनिया का। इट विल बी मच फन, मतलब ऐसा होगा, ऐसे मेरे जैसे बच्चे होंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। गोपा बोल करके और
मजाक बना रहा है, या फिर उसको छोटा बच्चा उसको शायद तो समझ में नहीं आ रहा. मिसेस देव, रिमेंबर आई वोंट बाय यू एनीथिंग द नेक्स्ट टाइम यू कम टू द मार्केट. Gopa, oh mummy, my dear mummy, makes faces and dances. I will get what I want. Now see here, even mummy is denying कि अगली बार तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. इस बार वो पूरा डांस कर रहा है, मेकिंग फेसेस मतलब चेहरा बना बना करके डांस कर रहा है और बोल रहा है कि आई विल गेट वॉट आई वॉन्ट. मुझे जो चाहिए वो तो मैं ले ही लूँगा. मिसेस देव लंजेस एट हिम. लंजेस मतलब एक ही बार अचानक से उसके सामने आके झुकती है. आई विल शो यू व्हाट यू विल गेट द नेक्स्ट टाइम. अब उसको भी वांट कर रही है, उसकी तरफ जल्दी से बोलती है कि दिखाती हूँ तुम्हें अगली बार क्या मिलता है. टू मिसेस देव, टू पैरी हर, Gopa quickly runs away from her without looking ahead and narrowly escapes being hit by a cyclist. He falls in a heap. Parry means, what is the meaning of parry? Parry means अचानक से मतलब चकमा दे करके जो भागा जाता है ना, उसको कहते हैं. वो जो झुक रही थी उसको लगा कि शायद मम्मी स्लैप कर दे या फिर कान पकड़ ले, या उसको वो सुनना नहीं चाह रहा था बात, तो जल्दी से वो बच करके निकला. गोपा क्विकली रन्स अवे फ्रॉम हर विदाउट लुकिंग अहेड, मतलब आगे देखे बगैर. एंड नैरोली मतलब एकदम थोड़े से के लिए बचा, मतलब स्केप मतलब बचना या निकल जाना. बीइंग हिट बाय अ साइक्लिस्ट, ही फॉल्स इन अ हीप. एक कुछ किसी चीज़ का हीप था, मतलब ढेर था, उसके ऊपर वो गिर गया. मिसेस देव, दैट सर्व्स यू राइट. ये सही हुआ तुम्हारे लिए, ये सही हुआ. सर्व्स यू राइट, जो जिस तरह से तुम कर रहे हो उसके लिए तुम गिरे, वो अच्छी बात हुई. अप्रोचेज हिम, उसके पास जाती है. मेक्स हिम स्टैंड स्ट्रेट एंड डस्ट ऑफ हिज क्लोथ्स. डस्ट ऑफ मतलब उसके कपड़ों को झाड़ती है. ओह कम ऑन गोपा, बी सेंसिबल एटलीस्ट व्हेन यू आर ऑन द रोड. थोड़ा सा ध्यान रखा करो. अब गोपा आके, वो मम्मी है, वो जानती है, शी इज़ वेरी केयरिंग फॉर हिज चाइल्ड लाइक ऑल द मम्मीज आर. तो वो उसको समझा रही है कि कभी तो सेंसिबल हो जाया करो, कम से कम रोड पर केयरफुल रहो, क्योंकि क्या होता है कि इट इज़ you may be hit by something, you may hurt yourself. Gopa, oh mummy, that sets you right. बिल्कुल सही हुआ. Oh come on mommy, you don't want me to be hurt, do you? तो अब गोपा को चोट लगी है, तो उसको अब लग रहा है कि भाई मम्मी बताओ ना, आप तो मेरे को ऐसा नहीं चाहती हो कि मुझे चोट लगे. तो मिसेस देव बोली, यस डियर, माई लिटिल डियर, और उसको प्यार से किस करती है. आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, हेल्दी एंड अ वाइज बॉय, दैट्स ऑल. आई विल बी मम्मी. मिसेस देव, ओके कम ऑन पैट सिम, मतलब उसको कंधे पर थपथपाती है. लेट्स गो एंड बाय सम वेजिटेबल्स. चलो हम लोग बाय खरीदना. यस लेट्स गो. मिसेस देव गोज अहेड, आगे जाती है. एंड व्हेन शी इज़ बियॉन्ड ईयर शॉट, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ जाती है कि वो उसकी बात ना सुन पाए. ही टर्न्स अराउंड एंड एड्रेसेस द ऑडियंस, मतलब क्योंकि ये प्ले है तो स्टेज पर हो रहा है. एंड द फर्स्ट सीन वॉज ऑफ कन्फेक्शनर शॉप एंड नियर बाई एरिया. एंड तब ये ऑडियंस को एड्रेस करके बोलता है, ओह शी डजंट लाइक चॉकलेट्स. इनफैक्ट ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड देयर weren't were many chocolates as we have them now. That's why you know she doesn't want me to eat them. But you, अपने पूरे क्राउड की तरफ देख करके पॉइंट्स हिज फिंगर एट द ऑडियंस. जो देखने वाले लोग हैं, सुनने वाले लोग हैं. ऑडियंस मतलब जो सुनने वाले लोग होते हैं. एंड आई लव चॉकलेट्स डोंट वी. तो चॉकलेट वो एड्रेस कर रहा है कि सब लोग तो चॉकलेट पसंद करते हैं, और मेरी मम्मी इसीलिए मुझे नहीं देना चाहती क्योंकि उनको बचपन में मिला नहीं. उनको बचपन में नहीं मिला क्योंकि उस वक्त ज़्यादा चॉकलेट नहीं था, इसी कारण अब वो चाहती हैं कि मुझे भी चॉकलेट ना मिले. नाउ दिस इज़ एक्ट 2, दिस इज़ सीन 2. Drawing room of a middle class family with a sofa or showcase containing knickknacks. What is knickknacks? Knickknacks are the small, मतलब थोड़ा सस्ता सजाने उजाने डेकोरेशन का आइटम होता है ना, जो बहुत महंगा नहीं होता, उसको कहते हैं, क्योंकि इट इज़ मिडिल क्लास फैमिली. शोकेस कंटेनिंग knickknacks, some pictures adorning मतलब सजा हुआ, डेकोरेट किया हुआ. Wall, a TV set on a trolley in the corner. Gopa is lying on sofa watching TV. Mrs. Dev is in kitchen. Mrs. Dev voice is heard when the curtain raised. जैसे ही curtain raised होता है, Mrs. Dev की आवाज़ आती है, गोपा गोपा.
फिर वो थोड़ी देर वेट करती है अगेन, मतलब थोड़ी देर का गैप होता है। गोपा गोपा एंटर्स द स्टेज एंड सी गोपा वॉचिंग टीवी, यानी कि ये जो सीन होगा सेकंड में, गोपा मज़े से बैठ करके टीवी देख रहा होगा। ओह सो दैट्स वाई यू आर नॉट डूइंग ऑल दिस, ओह दैट्स वॉट यू हैव बीन डूइंग ऑल दिस वाइल, ओह तो तुम यही कर रहे थे इतना देर से। गोपा कंटिन्यूज वॉचिंग द फाइट ऑन द टीवी, और उसको पता भी नहीं चल रहा है कि मम्मी कुछ बोल रही है, और वो लगातार टीवी देख रहा है। शी शेक्स हिम, उसको हिलाती है, जा करके गोपा को हिला रही है। वाई वॉट इज़ द मैटर मम्मी, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, व्हाट्स द प्रॉब्लम नाउ। गोपा अपना काम करके बैठा है तो उसको लग रहा है कि वो लगातार टीवी ही देखता रहे, तो वो मम्मी को बोलता है कि क्या बात है, व्हाट्स द मैटर, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने काम कर लिया, अब क्या प्रॉब्लम है। मिसेस देव, आई हैव टोल्ड यू सेवरल टाइम्स नॉट टू वॉच टीवी फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, ज़्यादा देर टीवी मत देखा करो। ड्यूरेशन मीन्स जो एक पीरियड होता है उसको। आई थिंक यू हैव बीन वॉचिंग इट फॉर मोर देन 2 hours नाउ, कम ऑन गोपा नाउ शट इट ऑफ। गोपा, ओ मम्मी वेट, इट्स माई फेवरेट प्रोग्राम सुपर समुराई, इट जस्ट स्टार्टेड, आई कॉन्ट मिस इट। इसका फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है तो बोल रही है कि नहीं मुझे रहने दो प्लीज़, मुझे देखने दो। मिसेस देव गोज टू द टीवी एंड शट्स इट ऑफ, वो सीधा जाए गई और टीवी ऑफ कर दी। डजंट मैटर इफ़ यू डोंट वॉच इट टुडे, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा एक दिन अगर नहीं देखोगे थे। यू हैव बिन वॉचिंग टीवी फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू शुड हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए कि बहुत देर से तुम टीवी देख रहे हो। स्लैप्स फोरहेड, अपने सर को ठोकते हुए, ओह नो टीवी ऑफ हो गया भाई। मिसेस देव, कम ऑन गोपा, गो आउट एंड प्ले सम गेम, देयर इज नोबडी टू प्ले विद मी मम्मी। मिसेस देव, आई डोंट केयर, यू बेटर गो आउट, कॉल योर फ्रेंड्स एंड प्ले। बाहर जा कर के, जब बाहर जाओ अपने दोस्तों को बुलाओ और खेलो। वेयर इज द प्ले ग्राउंड मम्मी, वी कांट प्ले इन द स्ट्रीट्स बिकॉज पासर्स बाय, जो भी वहाँ पर आने जाने वाले लोग हैं, राहगीर, पासर्स बाय एंड व्हीकल्स डिस्टर्ब अस एट एवरी अदर मोमेंट, लेट मी वॉच द टीवी मम्मी। अब इसके साथ भी थोड़ी मजबूरी है कि भाई कहाँ प्ले ग्राउंड है, और गली मोहल्ले में खेलो तो जो व्हीकल्स आते हैं, आने जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो प्लीज़ लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी ही देखने दो। मिसेस देव, डूइंग नथिंग डूइंग, कुछ नहीं होने वाला है गोपा। योर फादर हैज़ ऑलरेडी टोल्ड मी यू आर नॉट सपोज टू वॉच टीवी फॉर मोर देन एन आवर, 1 घंटा से ज़्यादा नहीं देखना है टीवी। योर कोटा फॉर टुडे, मतलब आज का कोटा खत्म हो गया, जितना टाइम उसको देखना था वो खत्म हो गया, इज ओवर, गो नाउ और डू योर होमवर्क। यू हैवंट डन वेल इन मैथ्स टेस्ट दिस टाइम, योर फादर वॉज आस्किंग मी वाई, तो तुमने मैथ्स में भी अच्छा नहीं किया, तो बेहतर है अपना होमवर्क करो या फिर मैथ्स की पढ़ाई करो। ओके मम्मी, ओके, आई एम गोइंग टू राजाज प्लेस, इज इट ओके नाउ। अब पढ़ाई की बात आई तो गोपाल सीधा तैयार हो गया कि ठीक है मैं राजा के घर जा रहा हूँ, राजा के प्लेस पर जा रहा हूँ। ओके ओके, गो अहेड बट गो इमीडिएटली नाउ, इमीडिएटली मतलब तुरंत जाओ। बट वेयर्स माई बॉल, कहाँ पर है मेरा बॉल, इट्स इन द अपर शेल्फ ऑफ द अलमीरा, अलमीरा के सबसे ऊपर वाले शेल्फ पर है। अब गोपा बुला रहा है, रोमा रोमा। अब मिसेस देव बोलती, वाई आर यू कॉलिंग द रोबोट, इट इज़ बिजी इन द किचन। नाउ सी यहाँ पर क्या पता चल रहा है, जो मम्मी का हेल्प करने के लिए घर में कौन है, रोमा है। रोमा कौन है, वो आया नहीं है, वो घर की मेड भी नहीं है, इट इज़ अ रोबोट टू हेल्प टू डू हाउस होल्ड चोर्स। गोपा, फॉर द बॉल, फॉर वॉट एल्स, क्यों बुला रहे हो, किस, तो बॉल को लेने के लिए, और किस लिए। ओह कांट यू मेक दैट मच एफर्ट, इतना सा भी तुम मेहनत नहीं कर सकते, इतनी सी भी कोशिश नहीं कर सकते हो। एफर्ट मीन्स कोशिश करना। ओह गोपा, इफ़ यू डोंट डू एनीथिंग फिजिकल योर बॉडी विल ग्रो लेजी एंड बिकम वीक। अब मम्मी तो जान रही है कि भाई फिजिकल एक्टिविटी का कितना इंपॉर्टेंस है, तो वो बोल रही हैं समझाने की, शी इज़ ट्राइंग टू मेक गोपा अंडरस्टैंड दैट फिजिकल एक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर नहीं करोगे तो तुम्हारा बॉडी लेजी हो जाएगा, मतलब आदत पड़ जाएगी और बॉडी वीक हो जाएगा, कोई काम नहीं हो पाएगा। यू विल बी इन ट्रबल, यू मस्ट डू योर होम वर्क योर सेल्फ, इट मेक्स यू सेल्फ रिलायंट एंड कीप्स यू फिजिकली फिट। रिलायंट मीन्स सेल्फ डिपेंडेंट, मतलब वो अपने काम के लिए दूसरे के ऊपर जब डिपेंडेंट नहीं हुआ जाता है देन इट इज़ सेल्फ रिलायंट। गोपा, ओके ओके, आई विल डू इट इन लोअर टोन इफ़ इट प्लीजेज यू, ठीक है मैं कर लूँगा, मतलब वो उसका आवाज़ कम हो जाता है क्योंकि उसको अब वो खुद से काम करना है।
इफ़ इट प्लीजेज यू, यही अगर आपको खुश करता है तो। बाय, बट कम बैक ऑन टाइम, डोंट बी लेट। चलो ठीक है, जाओ लेकिन टाइम पर आ जाना। एट द एग्जिट, आर यू हैप्पी नाउ मम्मी? येस आई एम, गो नाउ। बाय मम्मी, बाय, प्ले सम फिजिकल गेम। अब जाते जाते भी मम्मी जो है गोपा को बोल रही है कि प्ले सम फिजिकल गेम। यस मम्मी। एग्जिट्स आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, मिसेस देव इज क्लीनिंग हाउस व्हेन गोपा कम्स बैक। सो ओके ओके, आई विल डू इट इन लोअर टोन इफ इट प्लीजेज यू। तो आपको ये खुश करता है तो मैं ये करता हूँ। बाय बाय, बट कम बैक ऑन टाइम, डोंट बी लेट, लेट मत होना। एट द एग्जिट, जब बाहर जाने लगता है, आर यू हैप्पी नाउ मम्मी? येस आई एम, गो नाउ। बाय मम्मी, बाय, प्ले सम फिजिकल गेम। अब जाते जाते भी मिसेस देव जो है उसको बोल रही है कि भाई कुछ फिजिकल गेम करना, मतलब ये नहीं कि जाके बैठ जाना। गोपा, यस मम्मी। एग्जिट्स आफ्टर अ ब्रीफ पॉज, ब्रीफ पॉज मतलब थोड़ा सा रुक करके। मिसेस देव इज क्लीनिंग हाउस व्हेन गोपा कम्स बैक, और जब को गोपा अंदर आता है तो मम्मी जो है हाउस क्लीनिंग कर रही होती। सो व्हाट डिड यू प्ले गोपा? सिट्स डाउन एंड टेक्स ऑफ हिज शूज, अपने जूता को खोलता है। ओह व्हाट डू आई से, क्या बोलूँ मैं? वाई, व्हाट्स द मैटर? वेल, राजा वॉज इन नो मूड टू प्ले, उसका मूड नहीं था खेलने का। नॉर वॉज हिज सिस्टर, उसकी बहन को भी मूड नहीं था। ओह आई सी, आई मीन दे वरंट इंटरेस्टेड इन गोइंग आउट एंड प्लेइंग। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें बाहर जाके खेलने का मन ही नहीं था। देन दे वर मोर इंटरेस्टेड इन प्लेइंग अ वीडियो गेम। सो वी प्लेड वीडियो गेम। एंड जिस काम के लिए मना किया था वही काम करके ये गोपा आया है। एंड ऑल दिस वाइल, इतनी देर तक? यस मम्मी। वाई? स्लैप्स हर फोरहेड। ओह नो, I wanted to keep you off the TV screen and you went there and did the same. अब अपने सर पर ठोकते हुए बोल रही है मम्मी, क्यों नहीं, मैं तुम्हें टीवी से दूर रखने के लिए, टीवी स्क्रीन से दूर रखने के लिए तुम्हें भेजा वहाँ पर, और तुम वहाँ जाकर के वही काम किए। What should I have done? मैं क्या करता? तो मिसेस देव बोल रही है, एड्रेसिंग द ऑडियंस, ओह इट सीम्स सेंसलेस टू ट्राई एनीथिंग। What should a person anything? What should a person do under such circumstances when every child wants to watch TV and doesn't want to play? क्या किया जाए ऐसे सर्कमस्टांस में, ऐसे सिचुएशन में जब सारे बच्चे चाहते हैं कि बस टीवी देखें और कोई बाहर जाके ना खेले। एज चिल्ड्रन वी यूज टू प्ले क्वाइट अ लॉट, नाउ देर इज़ नथिंग बट टीवी। आई डोंट नो हाउ दिस जनरेशन विल स्टे हेल्दी। मेरे टाइम में कितना अच्छा था, सब लोग हम लोग बाहर खेलते थे, और आजकल की जनरेशन कैसे ये लोग हेल्दी रहेंगे, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है टू हैव अ हेल्दी बॉडी। ओ मम्मी, यू अननेसेसरली वरी योर सेल्फ, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप बिना मतलब का चिंता करती है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है। अननेसेसरी मतलब ज़रूरत नहीं है। अब मेरे लिए पानी लाइए। मिसेस देव, ओह कम ऑन, गेट अप एंड फेच इट योर सेल्फ। चलो उठो, अपने आप लेकर आओ। फेच मतलब लेकर, अपने आप खुद से लो। अब मम्मी ने मना कर दिया तो गोपा क्या बोल रहा है, रोमा रोमा अगेन, डोंट यू वॉन्ट टू फ्लेक्स योर मसल इवन अ बिट? थोड़ा सा भी मसल्स को अपना हिलाना नहीं चाहते हो? वॉट इज रॉबर्ट देयर फॉर इन द हाउस मम्मी? तो मतलब रोबोट किस काम का है? जब वो मुझे ही काम करना पड़े तो रोबोट किस लिए है? इट इज़ फॉर पर्सन लाइक माई सेल्फ, आई नीड इट्स असिस्टेंस इन डोमेस्टिक चोर्स। इट हैज़ नॉट बीन बॉट टू कैटर योर नीड्स, तुम्हारे मदद के लिए नहीं लाया गया, तुम्हारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नहीं लाया गया। एंड शी लीव्स द रूम। ओ मम्मी, बट वाई डज शी वॉन्ट वॉट आई शुड दैट आई शुड गो आउट एंड प्ले? पता नहीं मम्मी क्यों आप ऐसा चाहती हैं। एंड डू डोमेस्टिक कोर्स, सडनली अंडरस्टैंड्स, और अचानक से उसको ध्यान में आता है। एंड ही एड्रेसेस द ऑडियंस, ओह आई नो हर जनरेशन वेंट थ्रू द ग्रिंट, ग्रिंट मीन्स मतलब हार्डशिप। सो she wants us also to go through the same. Why should you and I do the grind? We have all the facilities at our disposal. क्यों हम लोग इतना मेहनत करें? उनको चॉकलेट नहीं मिला तो मुझे चॉकलेट नहीं, हम लोगों को चॉकलेट खाने से मना कर रही है। उन्हें बहुत मेहनत करने पड़ी अपने बचपन में, तो हम लोग से भी मेहनत करा रही है। क्यों करें जब हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ है, ऑल द फैसिलिटीज़ एट आवर डिस्पोजल। डिस्पोजल मीन्स मतलब दैट द पावर टू यूज़ समथिंग, यू नो दैट पावर टू यूज़ समथिंग, कुछ भी यूज़ करो और हटा दो वाला
जो रहता। नाउ दिस इज एक्ट 3। नाउ गोपा बेडरूम, अब ये थर्ड सीन जो है गोपा के बेडरूम का है। फोटोज ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट सेलिब्रिटीज अडॉर्न द वॉल। अडॉर्न मतलब फोटोज ऑफ म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज का फोटो दीवार में लगा हुआ। अ बुक केस, अ टेबल विद अ टेबल लैम्प एंड बुक्स एंड अ चेयर आर सीन इन द रूम। अ फ्यू शर्ट्स एंड ट्राउजर्स आर हंग इन द hooks on the wall. Gopa is in night dress, is lying in the bed. He is fast asleep. ये सारा सीन होगा when the third act will be played. Gopa suddenly opens his eyes on hearing a sound. Hey Roma, is that you? Voice from background से आवाज आती. No, it's not Roma, it's me. Looks around. It's me. Who's that? Voice from background. It's me here. गोपा लुक्स अराउंड, चारों तरफ देखता है. वेयर एलियन. वॉइस फ्रॉम अगेन द बैकग्राउंड. इन योर शर्ट पॉकेट. गोपा, वाओ, इन माई शर्ट पॉकेट. लुक्स कॉशियसली मतलब सावधानी से, ध्यान से. इनसाइड द पॉकेट ऑफ हिज नाइट शर्ट, अपने शर्ट के पॉकेट में देखता है. एलियन वॉइस फ्रॉम द बैकग्राउंड. ओ, नॉट इनसाइड योर नाइट शर्ट पॉकेट, इनसाइड योर शर्ट पॉकेट माई डियर. गोपा looks around. Where's my shirt pocket? Voice from background. Your shirt is hanging on the wall. Oh, I see. Jumps out of bed, runs to the shirt, puts his hand into it, picks up a small statue-like thing and holds it up in dim light. Dim मतलब हल्के रोशनी में. Wow, when did this thing get into my shirt pocket? कब आया मेरे पॉकेट में? Places it on the table as he tries to find out what it is. उसको कोशिश करता है कि समझने की ये है क्या चीज़. Aliens. Sudden darkness on the stage. When a light comes, the statue has turned into an alien being the size of the boy. Here I am in normal size. वो अपना साइज बदल लिया. Wow, such a big boy. Scared as he looks at the alien. थोड़ा डर जाता है. Scared मतलब डर जाना. I'm not a big boy. I'm an alien. Alien, is this your name? Well, my name is unpronounceable by Earth standard. मतलब मेरा नाम ऐसा है कि आप लोग प्रोनाउंस ही नहीं कर पाओगे. अर्थ में जैसी नाम रखा जाता है उससे बिल्कुल अलग है. बट बिकॉज आई एम एन एलियन टू योर वर्ड, आई कॉल माई सेल्फ एलियन. यू कैन कॉल मी एलियन. और क्योंकि मैं एलियन हूँ तुम्हारी दुनिया के लिए, तो यू कैन कॉल मी एलियन. ओह, is it? How did you get into my pocket? That's very easy, but I won't tell you the trick. That's our secret. भाई हमारे लिए बहुत आसान है, हम इस सीक्रेट नहीं बताएंगे आपको. We regularly get into the pockets of human beings. That's how we study human beings and their world. हम लोग स्टडी कर रहे हैं और आराम से ये काम करने के लिए पॉकेट किसी भी शेप साइज में आ सकते हैं. Have you come here to study our world and us? Yes, we have been doing that for quite some time. What do you mean? Yes, you have all heard it right. आपने सही सुना है कि मैं यही करने आता हूँ. क्या चीज़? रिसर्च. ह्यूमन बीइंग के ऊपर वो खोज कर रहा है कि कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा उनका लाइफ है, क्या हो सकता है, वही सारा चीज़. विच मीन्स यू हैव अ पर्पज इन स्टडिंग अस एंड आवर वर्ल्ड. मतलब अब ये पूछ रहा है कि इसका मतलब आपका तो तुम लोगों का कुछ तो पर्पज़ होगा कि अगर हम लोगों को पढ़ रहे हो तो. ऑफ कोर्स, ज़रूर, बिल्कुल है. एंड देयर मस्ट बी अ पर्पज़ फॉर योर बीइंग इन माई पॉकेट. और इसका भी पर्पज़ होगा कि आप मेरे पॉकेट में हो. येस, देयर इज़. वॉट इज़ इट? टू वॉच यू एंड योर एक्ट्स. मैं इसीलिए हूँ ताकि मैं तुमको और तुम्हारे एक्ट्स को, तुम क्या क्या करते हो, उसको मैं देख पाऊँ. वॉट आर यू लाइकली टू गेट आउट ऑफ इट? इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरे एक्ट को स्टडी कर रहे हो तो उससे तुमको क्या मिल रहा, क्या आ रहा है? लाइकली मतलब क्या समझ में आ रहा है? डू यू हैव द करेज टू लिसन टू व्हाट आई हैव टू से? करेज मतलब क्या इतना शक्ति है, ताकत है, साहस है कि ये सुन पाऊँ, मेरे बात को सुनो. व्हाट इज़ इट यू आर लाइकली टू टेल मी विच नीड्स करेज टू लिसन? बड़ी अजीब बात है. ऐसा बात क्या बोलने वाली हूँ जिसके लिए बड़ी ताकत की ज़रूरत होगी? टेल मी, डू यू हैव द करेज और नॉट? से यस और नो. अगर करेज है तो बोलो यस या नो. वो सब नहीं, कहानी नहीं. यस, आई हैव द करेज, मुझे है. ओके, देन गेट रेडी एंड लिसन केयरफुली. फाइन, आई एम रेडी. एकदम ध्यान से सुनो. नाउ सी हियर व्हाट एलियन इज सेइंग. एलियन takes some paper out of his pocket. Name Gopa, age 10
ईयर ओल्ड, स्कूल का नाम है एरिया सो एंड सो. यस गोपा, योर बॉडी इज लाइकली टू स्टॉप फंक्शनिंग विद इन 5 years. तुम्हारा बॉडी जो है आने वाले 5 साल में काम करना बंद कर देगा. गोपा गोज क्लोजर, और नज़दीक में जाते. व्हाट डिड यू से? क्या क्या बोल रहे हो? यस, वी हैव बीन मॉनिटरिंग, मतलब देख रहे हैं योर एक्टिविटीज़ फॉर द लास्ट मेनी ईयर्स. दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ आवर रिपोर्ट. जो स्टडी हम लोगों ने किया है उसका जो रिजल्ट आया है, कंक्लूजन आया है, यही है कि आने वाले 5 साल में तुम्हारा बॉडी एक्ट करना बंद कर देगा, फंक्शन करना बंद कर देगा. वाओ, मॉनिटरिंग माई एक्टिविटीज़, माई बॉडी इज लाइकली टू स्टॉप फंक्शनिंग इन अनदर 5 years, which means I wouldn't be able to enter college. What is this? What's the basis? ये कैसे है भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? इसका क्या आधार है, बेसिस, मतलब कि ये जो रिसर्च किए, स्टडी किए, क्यों ऐसा है, क्या इसका बेस है? I'll tell you, मैं बताता हूँ. Turns away. No, you are unnecessarily scaring me. मुझे बिना मतलब का तुम डरा रहे हो. That's why I said you would need tremendous, मतलब बहुत ज़्यादा courage to listen to me. No, I am not ready to believe it. What's the basis? मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं करता. बताओ क्या है इसका रीज़न, इसका बेस क्या है, कैसे बोल रहे हो? On which basis you are telling me this? Well, we have been monitoring your body for quite some time. We have instruments, मतलब बहुत सारे उनके पास tools है which can assume the size of microbes that is microorganism, जो कि बहुत tiny, that cannot be seen by your naked eyes. उतने छोटे साइज में हो जाते हैं. एंड एंटर वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी टू एसेस द सिचुएशन. बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में चले जाते हैं और वहाँ पर क्या सिचुएशन है, लाइक किडनी का क्या सिचुएशन है, तुम्हारे मसल्स, बोन्स, सब चीज़ का क्या सिचुएशन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साइज में जा करके हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. गोपा, ओह अनबिलीवेबल, व्हाट्स रॉन्ग विद माई बॉडी? वेल, what should I say? You have been living very irresponsibly for the last few years. बहुत ही irresponsible तरीके से रह रहे हो, मतलब तुम्हें जैसा बिहेव करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हो. What? Living very irresponsibly, मतलब बिना irresponsibly होकर के मैं जी रहा हूँ. Looks around, what I have been doing, my dear alien? क्या मैं कर रहा हूँ? अब उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बोल क्या रहा है. My dear Gopa, you have developed very bad habits which have led to this. तुमने बहुत सारे बैड हैबिट्स को डेवलप कर दिया जिसके कारण ये हो गया है कि अब तुम्हारा ऐसा ही चलता रहेगा तो आने वाले 5 साल में योर बॉडी विल स्टॉप फंक्शनिंग. ओह, इज इट? व्हाट आर दोज हैबिट? एलियन, वेट, डोंट बी इन हरी, टेक अ सीट, फोर्स हिम टू सिट ऑन द नियर बाय स्टूल. आई विल टेल यू. फर्स्ट ऑफ ऑल, looks up some paper. Yes, you don't take your meals on time. You eat food as and when you feel like. मतलब ये सारा इसके बारे में बता रहा है कि तुम्हारा क्या क्या चीज़ है. आराम से बैठो, मैं बता रहा हूँ वाला बात है. और पेपर में देख करके, लुक्स अप सम पेपर, कुछ पेपर निकाल करके उसको देख रहा है. हाँ, तो पहला क्या है, तुम टाइम पर खाना नहीं खाते हो और जब मन करता है तभी खाते हो. गोपा वाली, वेल दैट्स ट्रू. इंस्टेड ऑफ ईटिंग न्यूट्रिशियस, नेचुरल एंड हेल्दी फूड, यू ईट लॉट ऑफ जंक. बहुत सारा जंक फूड खाते हो. जंक, व्हाट डू यू मीन? आई एम नॉट अ डॉग और काउ टू ईट जंक. मैं कचरा तो नहीं खा रहा हूँ, मैं डॉग और काउ तो नहीं हूँ कि कहीं से भी उठा के कुछ खा लूँ. एलियन, जंक फूड्स लाइक चॉकलेट, स्वीट्स, आइसक्रीम्स, च्युइंगम्स, कैंडीज, वेफर्स. देन इंस्टेड ऑफ मिल्क एंड वाटर यू ड्रिंक सॉफ्ट ड्रिंक्स, टी, कॉफ़ी. ये सारा जंक है. गोपा स्टन्ड, मतलब वो पूरा आश्चर्यचकित, मतलब भौचक्का रह जाता है. बट वॉट रॉन्ग एम आई डूइंग इन ईटिंग और ड्रिंकिंग दोज थिंग्स? क्या गलत कर रहा हूँ अगर ये चीज़ मैं खा रहा हूँ तो? एवरीबडी इज़ डूइंग द सेम, सारे लोग यही कर रहे हैं. मोर ओवर ऑल दीज थिंग्स आर रीडियली अवेलेबल. रीडियली मतलब आराम से अवेलेबल है. इनफैक्ट दे आर एडवर्टाइज राउंड द क्लॉक सो दैट वी ईट और ड्रिंक मोर एंड मोर ऑफ देम. और उसका एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है लगातार, राउंड द क्लॉक टीवी पर लगातार एडवर्टाइजमेंट आ रहा है. ये कोल्ड ड्रिंक, ये चिप्स, वो मतलब सब तरह का. तो क्यों नहीं खाएं? व्हाट्स रॉन्ग? आई कांट अंडरस्टैंड. क्या गलती है इसमें? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा. माई डियर गोपा, दैट्स द प्रॉब्लम. वही तो प्रॉब्लम है. व्हाट्स द प्रॉब्लम? स्पेल इट आउट. क्या प्रॉब्लम है? मुझे बताओ अच्छी तरह से. दैट यू कांट मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड फॉर योर हेल्थ. तुम्हें पता ही नहीं चल रहा है, तुम डिफरेंस ही नहीं कर पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है तुम्हारे हेल्थ के लिए. यू ईट अ थिंग्स बिकॉज एवरीबडी इज ईटिंग इट. तुम बस इसीलिए खा रहे हो क्योंकि सारे लोग खा रहे हैं. और बिकॉज दैट इडियट बॉक्स, टीवी के बारे में बोल रहा है. टीवी को इडियट बॉक्स भी बोला जाता है.
tells you to do so, क्योंकि वो टीवी का एड बोल रहा है. Am I wrong? Could you explain it clearly? Am I wrong? तो गोपा बोल रहा, could you explain me clearly? अच्छी तरह से बताओगे ज़रा. Yes, you see, chocolate contains a metal in large amount which causes damage to the human brain in due course. मतलब चॉकलेट अभी खाओगे तो तुरंत तो नहीं खराबी करेगा, लेकिन इन ड्यू कोर्स कुछ टाइम के बाद उसका असर होगा और वो ह्यूमन ब्रेन को, मतलब तुम्हारे ब्रेन को डैमेज करेगा. अ मेटल इन चॉकलेट्स? ओह नो. देन शुगर इज़ डेंजरस केमिकल इफ़ कंज्यूम्ड इन लार्ज क्वान्टिटीज. शुगर बहुत डेंजरस केमिकल है अगर लार्ज अमाउंट में खाया जाए. इट कैन एडवर्सली मतलब निगेटिवली affect your system causing diabetes and other serious ailment. Ailment means बीमारी. Sugar dangerous, चीनी और dangerous, not in small quantities. छोटे अमाउंट में अगर थोड़ा थोड़ा खाया जाए तो नहीं, but in large amount like eating chocolate. चॉकलेट में बहुत शुगर होता है. And sweets round the clock अगर खाया जाए तो definitely. Oh, I see. Then potato wafers are cooked with oils that are particularly harmful to the heart. और जो चिप्स वगैरह जो है, पोटैटो वेफर्स मीन्स चिप्स जो खाते हैं वो सब, पतला वेफर्स क्या होता है जो पतला चिप्स लाइक या फिर बिस्किट वगैरह का भी वेफर्स रहता है, तो वो सारा चीज़ है खराबी करता है. जो कि ऑयल जिस ऑयल में बना रहता है वो हार्ट के लिए हार्मफुल है. ओह, आई नेवर न्यू, नोबडी टोल्ड मी. एलियन, बट माई डियर गोपा, योर मम्मी हैज़ ऑलवेज बीन वार्निंग यू अगेंस्ट ईटिंग दीज थिंग. तो गोपा बोल रहा है, गोपा यहाँ पर तो बोला कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था. और जब एलियन तो स्टडी कर ही रहा तो वो तो पूरे उसके एक्टिविटीज़ को स्टडी कर रहा है, तो बोले कि तुम्हारी मम्मी तो बोल ही रही है. गोपा बोलता, ओह सो यू नो दैट टू. एलियन, देन यू वॉच टीवी कंटिन्यूअसली. डू यू नो दैट हार्मफुल रेज आर एमिटेड बाय द स्क्रीन दैट कैन डैमेज योर आइज ओवर द ईयर्स. जो टीवी लगातार देख रहे हो उससे जो रेज निकल रहे हैं, हार्मफुल रेज, वो तुम्हारे आंखों को ख़राब कर सकता है कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद. वाओ, इज़ इट? दैट्स वाई लार्ज नंबर ऑफ माई फ्रेंड वियर स्पेक्स. हाँ, लगता है इसी कारण मेरे बहुत सारे दोस्त चश्मा पहनते हैं. येस, दैट्स करेक्ट. बट दोज हार्मफुल रेज कैन क्रिएट मेनी मोर प्रॉब्लम्स. और भी सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. ओ, इज़ इट सो? Then you also don't do exercise. Exercise भी नहीं करते. You don't even play a game involving physical activities. Physical activities keep your bones and muscles trim and fit. Muscles और bone को trim fit करता है अगर exercise करते हैं. Otherwise your body would stop further growth and development. अगर physical activity नहीं होगी तो आने वाले body function करना बंद कर देगा. Oh, I never knew. Nobody told me. मुझे ये पता ही नहीं था, किसी ने मुझे बताया ही नहीं. एलियन बोला, बट नाउ आई एम टेलिंग यू बेटर एक्ट फास्ट, अदरवाइज यू वुड बिकम इल और ओल्ड एट अ वेरी अर्ली स्टेज. योर बॉडी हैज़ ऑलरेडी बिकम वीक ड्यू टू लार्ज कंजम्पशन. कंजम्पशन मीन्स जो उसने अपने बॉडी में कंज्यूम कर लिया, खा लिया ऑफ हार्मफुल केमिकल्स. जो ऑलरेडी तुम खा चुके हो वो, तो जो खा चुके हो उसका नुकसान तो होना ही है. ओह, दैट्स बैड. ये तो बड़ी बुरी बात हुई. नो, आई डोंट वॉन्ट टू बी इल और एज फास्ट. आई वॉन्ट टू गो टू द कॉलेज. आई वॉन्ट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट. और उसका है कि भाई वो जिंदा रहेगा तभी तो एस्ट्रोनॉट बनेगा. वो बोल रहा है कि अब डर गया है कि भाई मैं मरना नहीं चाहता हूँ, मैं बीमार भी नहीं होना चाहता हूँ. ओह, एस्ट्रोनॉट, सो यू वॉन्ट टू गो इन टू स्पेस. गोपा, यस, आई लाइक एडवेंचर एंड थ्रिल. एडवेंचर मीन्स मतलब जो बड़ा ही रिस्की और करेजियस एक्टिविटी होता है उसको एडवेंचर बोलते हैं. तो वो बोला कि मुझे एडवेंचर और थ्रिल बहुत पसंद है. यस, व्हाई नॉट, बट फॉर दैट यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन. और उसके लिए अगर ये वाला लाइफ जीना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, आगे ज़िंदगी जीनी है, तो यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन. डिसिप्लिन, आई एम रेडी टू डू एनीथिंग. छोटी सी बात है डिसिप्लिन, मैं तो सब चीज़ करने के लिए तैयार हूँ. फाइन, गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ओके, डन. गो फॉर द मॉर्निंग वॉक्स. फाइन, डन. स्लीप अर्ली. अवॉइड लेट नाइट मूवीज विच स्पॉइल योर आइज एंड हेल्थ. मतलब जल्दी सोना है, अवॉइड करना है क्या चीज़, उस चीज़ से बचना है कि लेट नाइट मूवीज़ नहीं देखना जो कि आँख के ऊपर बैड इफेक्ट डालते हैं. फाइन, डन. सारा चीज़ डन. एंड अवॉइड जंक फूड भी नहीं खाना है. डन. आई वुड बी डिसिप्लिन राइट फ्रॉम दिस मोमेंट. दैट्स गुड. आई एक्सपेक्टेड दिस. आई विश ऑल द चिल्ड्रन ऑफ दिस वर्ल्ड बिकम हैप्पी, हेल्दी एंड वाइज. मैं चाहती हूँ कि इस दुनिया के सारे बच्चे खुश रहें, हेल्दी रहें और वाइज रहें, बुद्धिमान रहें. डू यू मीन ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द वर्ल्ड आर हैविंग? तो मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि दुनिया के सारे बच्चे ऐसे हैं.
यस द टाइम ऑफ इलनेस और एजिंग ओनली वेरीज, मतलब टाइम ऑफ इलनेस, टाइम फॉर इलनेस और एजिंग मतलब डिफरेंट लोगों के लिए थोड़ा अलग अलग होता है कि कुछ लोग 2 साल 3 साल या 10 साल, लेकिन मोर और लेस सब लोग का हाल एक ही है। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब ये भी सरप्राइज है। यस दैट्स ऑल दैट इज़ लेफ्ट, बस यही बचा है। वी आर डूम्ड स्पेसिस देन, मतलब हम लोग तो डूम्ड स्पेसिस है, मतलब जिसका भविष्य बहुत ही अंधकार में है, मतलब जो ख़त्म होने वाले, बर्बाद होने वाले स्पीसीज हैं। यस टू अ लार्ज एक्सटेंट, हाँ मोटा मोटी यही बात है, एलियन बोल रहा है। दैट्स मीन योर मैसेज नीड्स टू बी स्प्रेड टू ऑल चिल्ड्रन क्विकली एंड फास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मैसेज तुम दे रहे हो वो बाकी सारे बच्चों में जल्दी और तेज़ी से फैलना चाहिए। यस वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट। You mean you are trying to save us? Yes, we are. Why do you want to help us? As a part of universal brotherhood. यूनिवर्सल मतलब पूरी दुनिया में ब्रदरहुड रहे, हारमोनी रहे, भाईचारा रहे, उसके लिए एज अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। यस ट्रू। डू यू मीन टू से दैट देर आर अदर इंटेलिजेंट लाइफ स्पीसीज स्कैटर्ड ऑल ओवर द यूनिवर्स? स्कैटर्ड मीन्स फैला हुआ, कि और इंटेलिजेंट लोग हैं मतलब दूसरे दुनिया में। यस लाइक योर स्टार्स, एंड देर आर काउंटलेस स्टार्स इन द यूनिवर्स अराउंड विच आर ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स लाइक द अर्थ। इंटेलिजेंट नॉट नेसेसरली ह्यूमन लाइक स्पेसिस, इंटेलिजेंट है, ह्यूमन लाइक ना हो वो अलग बात है, लेकिन इंटेलिजेंट स्पेसिस है। हैव इवॉल्व ऑन देम एंड थ्राइविंग, मतलब आराम से अच्छी तरह से रह रहे हैं। थ्राइविंग मीन्स रहना, मतलब ग्रो कर रहे हैं। वी ऑल फॉर्म अ ब्रदरहुड, हम लोग सब लोग भाईचारा बना के रखते हैं। वी आर कंसर्न अबाउट द हेल्थ ऑफ द ह्यूमन्स ड्यू टू द रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। हम लोग कंसर्न है किसके लिए? ह्यूमन के लिए, क्योंकि वो लोग रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को मिस यूज कर रहे हैं। एनी क्वेश्चंस? यस वन। व्हेन कैन आई मीट यू अगैन? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिप्लाई टू दिस क्वेरी। अब गोपा को इतना इंटरेस्टिंग एलियन मिला है, फ्रेंड मिला है, तो वो उससे पूछ रहा है कि मैं अब तुमसे कब मिल सकता हूँ। तो एलियन बोला इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू, इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत डिफ़िकल्ट है। नो नो यू मस्ट टेल मी। ट्राइज टू पुल हिज स्लीव, उसके शर्ट के स्लीव को खींचते हुए कि नहीं मुझे बताना पड़ेगा। नो आई एम सॉरी बाय। नो नो यू मस्ट टेल मी व्हेन यू आर कमिंग बैक। टेल मी द लाइट ऑन द स्टेज। वो पूरा हल्ला कर रहा है कि बताओ बताओ बताओ, और तब तक में द लाइट ऑन द स्टेज डिम्स एंड एलियन डिसअपियर्स, और लाइट होता है, डिम होता है, एलियन भाग जाता, चला जाता है। डिसअपियर मतलब अंतर ध्यान हो जाता है। When light returns, Gopa is still in bed and is shouting the last few sentences. His mother rushes, मतलब दौड़ करके आती है into the room and finds him looking extremely puzzled. पूरी तरह से confused उसको देख रही है। Hey Gopa, what's the matter? Where is he? Where is he? Who? Gopa, alien. Alien? Who is that? Who is that? Now, Gopa, an alien from the outer space, he was just talking to me. वो मेरे से अभी बात कर रहा था. Talking with you, it must be a dream, my dear. Get up now. ये ज़रूर ड्रीम ही होगा, सपना. No, no, how can it be? It was just here talking to me about chocolates. वो मुझे चॉकलेट के बारे में बता रहा था. मिसेस दे, ओह सो चॉकलेट्स आर कमिंग इन योर ड्रीम टू. तो चॉकलेट अब तुम्हारे सपनों में भी आने लगा. गुड. वॉट एवर यू मस्ट हैव टॉक्ड, इट इज़ ऑलरेडी 6 o'clock. It is time for you to get up and get ready for school. Oh, is it? But today I have something wonderful to tell all my classmates. हाँ जल्दी, अच्छा इतना टाइम हो गया, लेकिन आज मेरे पास कुछ अच्छी बातें हैं कहने के लिए अपने क्लासमेट को. और मिसेस देव को तो पता नहीं है पूरा जो उसके साथ सपने में एलियन वगैरह का बारे में. तो मिसेस देव बोलते अबाउट चॉकलेट्स. नो मम्मी, नो, अगेंस्ट ईटिंग चॉकलेट्स. मतलब नहीं, चॉकलेट के बारे में नहीं, चॉकलेट नहीं खाने के बारे में. ड्रिंकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, ईटिंग वेफर्स एक्सेट्रा. दैट्स व्हाट आई हैव बीन टेलिंग यू ऑल अलोंग. मैं इतनी दिन से लगातार मैं यही बात बोल रही हूँ. इजंट इट? यस ट्रू मम्मी, यू ऑलवेज लव योर सन एंड वॉन्ट हिम टू बी हेल्दी, हैप्पी एंड वाइज. इजंट इट? और ये एकदम प्यार से बोल रहा है कि हाँ मम्मी, तुम हमेशा अपने बेटे को कैसा चाहती हो कि हेल्दी रहे, हैप्पी रहे, वाइज रहे, है ना. Oh yes, now you go and get ready for your school. Yes मम्मी, you are wiser than alien. अब ये अपनी मम्मी को समझ पा रहा है कि नहीं, you are wiser than
alien. फाइनली है ही हैज़ अंडरस्टूड. इतने दिन से मम्मी बोल रही थी, समझ में नहीं आया. एक सपने में एलियन ने कहा और उसको सारी बातें समझ में आ गई. और अब इसको ये भी समझ में आ गया कि मम्मी इज़ मच वाइजर देन एलियन. नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर and the exercise part. Fill in the blanks. Mrs. Dev bought bread and butter from the shop. See the fill in the blanks. Gopa's favorite TV program was Super Samurai. Gopa was allowed to watch TV for 1 hour. Just see, these are the fill in the blanks that has to be done in page number 81 and 82. Now complete the following statement. Gopa's mother didn't want him to eat chocolates because chocolates are bad for health. Gopal could not play in street because passers-by and vehicles disturb them at every moment. So these are all the question answers, the fill in the blanks of B part. Gopal thought that his mother wanted him to do work because she had worked hard in her childhood. According to alien, Gopa body would stop functioning. यहाँ पर stop होना चाहिए था भाई, यहाँ पर stop functioning after 5 years because of his irresponsible and unhealthy lifestyle. Alien told Gopa he should not eat junk food because they are harmful to our health. Why did Gopa create a fuss in the market? क्यों भाई क्यों किया? क्योंकि Gopa created a fuss in the market for the chocolates as his mother was not buying it for him for health reason. Why did Gopa mothers forbid him to watch TV? Dear students, always remember when the question is in past tense, must answer it in past tense. As you see, forbid, and here the past tense of forbid is forbid. Gopa's mother forbid him to मतलब मना करना, watch him TV as she was concerned of his eyes because Gopa had become couch potato. Who was couch potato means जो लगातार टीवी देखते रहता है, उन लोग को couch potato बोला जाता. Who was totally disinterested in outdoor physical activities. Now what reason did Gopa quote in favor of having cold drinks? The reason that Gopa quoted in favor of having cold drinks were, क्या था cold drink के लिए? कि everyone is drinking that, doing the same. All these things are readily available, आराम से available है. They are advertised around the clock. And this is what conclusion of alien report about Gopa's health. क्या था कि stop functioning in 5 years because of his lousy lifestyle and bad eating habit. List the instruction which alien gave to Gopa to be disciplined. The instruction which alien gave to Gopa to be disciplined were: lead a disciplined life, get up early in the morning, sleep early, avoid junk food, avoid late night movies, read the extract. किसने कहा था? My dear, you have already warned me. Act 1 में से किसने कहा था? Mrs. Dev. Who said these words and to whom? Mrs. Dev said these words to Gopa. What warning had been given to the speakers? The speaker had been warned that a scene would be created in the market if the speaker did not buy a chocolate for him. Do you have the courage to listen to that? What I have say? ये Act 3 का है. Whom do you and I refer to? You refer to Gopa and I refer to alien. What was the speaker going to say? The speaker was going to read the conclusion of Gopa's health report that stated that this body would stop functioning in another 5 years. How did the listener react to what the speaker said? The listener was surprised and shocked to hear the conclusion of his health report. That means your message needs to be spread to all children. Act 3 का है ये. And whose message need to be spread? किसका था वो? Alien का message. And what is the message? Say this is the E part which has been done here like this. You have to do it in your book. And this is not simply a question of thoughts. A question of buying a chocolate is much more than that, says Mrs. Dev to shopkeeper. What more Mrs. Dev want to point out? इसको discussion करना है कि भाई physical well-being is much, physical and mental well-being is important. And if one doesn't do the such kind of if a person keeps on eating junks and chocolates, then definitely it is not good for the health, as well as the, if health is not good, your mental well-being is at risk. She can buy chocolates. Okay, so life skill. What is life skill? Life skill is, when you are able to acquire the skill to lead a beautiful and productive life, then it is you are acquiring it. So junk food is tasty, attractive and easily available but harmful to health. You have to discuss this. This has been discussed here. And yes,
And of course, dear children, I would like to tell you that these are for reference only. You can form your own answer in your own words. That will be much more appreciated. That will be good for you. Now, values. Discuss in group of 4 or 5 and find out what traits are common between Gopa and your generation. How will you get rid of those bad habits? Kya karoge bhai? These are the answer. And writing skill, diary entry. This is diary entry. You have to imagine you are Mrs. Dev. Write a diary entry describing the changes in Gopa's attitude after you found him screaming in the dream. Scream matlab chillana. So this is, I am pleasantly surprised to see changed behavior of Gopa after he screamed in his dream. And you can always form your own opinion, and you can write the diary of your own. And I guess things are clear. Thank you. That's all. And stay safe. Bye. Bye-bye.